ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੋਕਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਾਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਜੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, 26 ਤਰੀਕ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ, 26 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, SKM ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਆਇਆ ਕਿ ਆਹ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ MSP ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ BJP ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ, MSP ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਲੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੇ ਕੁ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ BJP ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੀਪਕ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜੋ ਅਜੇ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ने हरियाणा सरकार ने जो केस वापसी करे ने? देखिए वीर जी, मेरी कल भी बात हुई थी अपने एडवोकेट भुल्लर साहब है चंडीगढ़ हाई कोर्ट से। वो केस लड़ रहे हैं, किसानों के केस हरी में लड़ रहे हैं और वो घूमते रहते हैं। वो दिल्ली जो वाले जो केस हैं वो भी वही लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया था जो 17 केस दिल्ली पुलिस ने वापस लिए हैं, वो केस वो वापस लिए जिनके ऊपर 188 धारा लगी हुई थी। जो महामारी आई थी ना, महामारी के दौरान उसका उल्लंघन कर दिया, वो केस वापस लिए हैं। जो केस लाल किले के उत्थे लगाए थे और जो दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर परेड की गई थी, वो लगाए हैं 96 और 98 की धारा लगा के। लाल किले के ऊपर जो केस थे उसमें लखा सदाना, दीप सिद्धू, ये सभी के नाम हैं। वो केस ना तो वापस हुए हैं, ना ही उन केसों पे कोई बातचीत हुई है। वो केस बिल्कुल भी वापस नहीं हुए हैं। दूसरा, जो किसानों की जमानत की अर्जी दी गई थी वो भी कैंसिल कर दी गई। और जो हरियाणा सरकार ने 117 कुछ केस वापस किए हैं, 40,000 प्लस केस हैं, वो भी वो केस वापस लिए हैं जिनकी खाली FIR दर्ज थी, वो कोई केस नहीं था। वो 188 की धारा वाले केस वापस ले रहे हैं। जो मेन केस हैं, जो आंदोलन वाले केस हैं, उनको किसी को भी वापस नहीं लिया गया है। ये सरकार घपला जो करते ना, बोलते हैं दिखाते कुछ है करते कुछ है, वो कर रही है। इन्होंने एक बोला था कि MSP पे एक कमेटी बनाएंगे, 5 महीने से ज्यादा का समय हो गया, कोई कमेटी गठित नहीं की है। ये केसों के बारे में बोल रहे हैं हमने सभी केस वापस ले लिए, एक भी केस वापस नहीं हुआ है। और हरियाणा का तो आप 2016 में एक आंदोलन हुआ था, आरक्षण आंदोलन, उसके केस अभी 2021 और 22 में आकर ओपन किए जा रहे हैं, रीओपन किया जा रहा है उनको। ये सरकार कभी भी उनको ओपन कर सकती है। भुल्लर साहब ने बताया था कि इसके बारे में मैं सभी जितने किसान जत्थेबंदियों के बड़े नेता हैं सभी से बातचीत करूंगा एक बार। इनके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी। जो नए नए बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों के ऊपर केस लगा रखे हैं। इसके लिए तो आंदोलन होगा, इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है किसान नेताओं ने। जगह जगह मीटिंगें हो रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि 40,000 प्लस केस हरियाणा के हैं, 40,000 प्लस केस पंजाब के हैं। और जो दिल्ली के वाले केस हैं, सबसे बड़ी दिक्कत बनेगी वीर जी, दिल्ली वाले केस है। अभी अपना हरियाणा और पंजाब अपने सूबे में तो हम लड़ सकते हैं, लेकिन दूसरे सूबे में जाकर केस लड़ना ये मुश्किल हो जाएगा। वहां पे ना तो कोई सुनता है, ना ही कोई सुनवाई है, वहां कोई नहीं सुन रहा। भुल्लर साहब खुद 3-4 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। जो ट्रैक्टर पकड़े हुए हैं, 26 जनवरी को तो आपने जिक्र किया परेड हुई थी ना, उस परेड में 100 या 150 ट्रैक्टर पकड़ रखे दिल्ली पुलिस ने। वो ट्रैक्टर आज तक नहीं छोड़े गए हैं। उन ट्रैक्टरों के लिए बार बार एप्लीकेशन दी जा रही है।
बार बार तारीख पे तारीख दी जा रही है। ये सरकार तारीख आगे सरका देती है। इनको लड़ना था चुनाव। अब जैसे ही चुनाव खत्म हो गए हैं, ये केस भी ओपन करेंगे, ये दबाव भी बनाएंगे, किसानों के ऊपर भी दबाव बनाएंगे, किसान नेताओं पर भी दबाव बनाएंगे कि केसों में ये हो जाएगा, सजा हो जाएगी, बच्चों को भी डराया जाएगा। उससे अच्छा है पहले ही तैयारी करके रखी जाए कि केस वापसी तो करवानी करवानी। पहला मुद्दा बनेगा केस वापसी का, क्योंकि केस वापसी का सरकार ने लिख के दिया था कि सभी केस वापस हो जाएंगे, और अभी तक एक भी केस वापस नहीं हुआ है। खुद मेरे ऊपर 3-4 केस हैं, जो देशद्रोह गद्दार केस लगा था, वो केस तो मैंने लड़ लिया। खुद एसएचओ साहब ने मेरे को बोल लिया था कि ये केस वापस हो जाएंगे, अभी तक केस वापस नहीं हुआ है। मैं 3-4 बार जाके खुद पूछ के आया हूं। बहुत से केस ऐसे हैं जिन बंदों को खुद को नहीं पता कि उनके ऊपर केस लगा हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो बंदे आंदोलन में शामिल थे, वो कृपया करके अपने नजदीक के थाने में जाके एक बार अपना चेक करके आ जाए, आपके ऊपर केस है या नहीं है। और दिल्ली वाले तो बहुत से केस हो गए, कुछ के सम्मन आ गए थे और कुछ के सम्मन रोक दिए गए थे। वो सम्मन अभी चुनाव के बाद आएंगे। तो घपला बहुत बड़ा कर रखा है इस आंदोलन के दौरान। उसकी तैयारी अब कर रहे हैं। अगला जो आंदोलन होगा, सबसे पहले केस वापसी, फिर एमएसपी और किसानों का कर्ज माफ का, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का, फसल खरीद गारंटी का। अब आंदोलन ये चलेगा। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੋਂਗਲੋਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕੇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ वाले केस। बिल्कुल वही केस जो उल्लंघन हुआ था, नियमों का उल्लंघन हुआ था, वो केस वापस लिए गए। आंदोलन का एक भी केस वापस नहीं हुआ है। किसी भी केस को अभी तक इन्होंने टच भी नहीं किया है। वापस लेना तो बहुत दूर की बात है, टच भी नहीं किया है किसी भी केस को। दूर तो लेना, तो कोई जिक्र करना, किसी के पास सम्मन भेजना, वो भी नहीं किया। इन्होंने दबाया हुआ उन केसों को प्रेशर बनाने के लिए, आम जनता के ऊपर, किसानों के ऊपर ये प्रेशर बनाने के लिए दबाया हुआ इन केसों को। उन केसों को अभी तक छेड़ा भी नहीं गया है वीर जी। और बुल्लर साहब का वीडियो भेज दूंगा मैं आपके पास। उन्होंने खुद वीडियो में आके बताया है, फोन पे भी बताया है। बुल्लर साहब खुद बोल रहे हैं, वो नेता, किसान नेताओं से, अगुवाओं से भी बात कर रहे हैं कि इन केसों की तरफ ध्यान दो, नहीं तो बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। उनकी तरफ अभी ध्यान दिलाया जाएगा। हम भी खुद आ रहे हैं, 15 तारीख की पंजाब में मीटिंग है, वहां मीटिंग में आएंगे, वहां भी बातचीत करेंगे। आप भी आना, वहां पे देखना, मिलना सभी नेताओं से। किसी भी केस को वापस नहीं किया गया है अभी तक। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੀਪਕ ਜੀ? सबसे पहले तो केस वापसी का होगा वीर जी, एमएसपी गारंटी का, जो किसानों का संपूर्ण कर्ज माफी का है। उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो गया था, किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। और जो फसल खरीद गारंटी कानून है उसका, नहीं तो अगर कल कोई ये 3 कानून फिर आगे वापिस, फिर कानूनों के लिए लड़ना पड़ेगा। और कानूनों के लिए 13 महीने तक लड़े, 720 साथियों की शहादतें दी, कानून तो फिर लेके आ जाएगी सरकार। अगर यही सरकार दोबारा आएगी तो फिर कानून लेके आ जाएगी। ये क्लियर है वीर जी। बीजेपी है किसान मजदूर विरोधी सरकार है। आप देखो पिछले 2 साल से इन्होंने एक भी भर्ती नहीं निकाली है। इवन आर्मी की भर्ती भी नहीं निकाली इन लोगों ने। ये जो स्टेट गवर्नमेंट की भर्तियां होती हैं ये तो अलग होती हैं, आर्मी की भर्ती भी नहीं निकाली इन लोगों ने 2 साल से। इनके पास बहाना है, बहाना लेके बैठे हुए हैं। इनको जो काम करना चाहिए वो तो ये करते नहीं है, जो नहीं करना चाहिए उसको पहले करते हैं। ये जितनी बड़ी झूठी सरकार है, इसका सबको पता लग चुका है, पूरे देश को पता लग चुका है। सच्चाई ये कभी नहीं बोलते। हाँ, जब इनकी कुर्सी को खतरा होता है तो ये हर चीज मान लेते हैं, नहीं तो ये किसी की सुनवाई नहीं करते। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਹੁਣ? एमएसपी का ऐसा है, इन्होंने जो सरकार ने बोला था कि हम कमेटी गठित करेंगे, उस समय पे सबको पता था ये कोई कमेटी नहीं बनाएंगे। लेकिन 13 महीने का लंबा समय हो गया था और कुछ लोग भी चाह रहे थे कि अभी कोई फैसला हो जाए। फिर ऊपर से पंजाब में चुनाव आ गए थे, उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गए थे। 5 साल में एक बार आते हैं, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये भी जरूरी था। चलो वो तो हो गया, अभी चुनाव तो 2024 में है, अभी समय भी है। अगर दोबारा कट को इकट्ठा करना है, पर कुछ लोग जागरूक भी नहीं हो पाए थे। अगर हम कह दे कि सभी जागरूक थे, पूरा पंजाब भी जागरूक नहीं था, पूरा हरियाणा जागरूक नहीं था, पूरा उत्तर प्रदेश भी जागरूक नहीं था, जागरूक नहीं हो पाए थे। अभी पहले लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि किस प्रकार ये सरकार आपके हकों को मार रही है, आपके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। अभी एक नया कानून आया है बनके हरियाणा में कि बगैर किसान से पूछे उसकी जमीन की कुर्की कर दी जाएगी, नीलामी कर दी जाएगी, किसान से पूछना भी नहीं है। ये कानून आया अभी बनके नया। इस कानून का भी अभी उसमें शामिल किया जाएगा।
कि ये कानून लेके क्यों आए। तीन, एक तरफ बोलते हम किसानों का भला करना चाहते हैं, ऊपर से बगैर किसान से पूछे उसकी जमीन की नीलामी कर दी जाएगी। ये कौन सा कानून आया है? और इसके लिए हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते। इतना अजीब कानून पहली बार देखा है। आप कोर्ट में जैसे पहले 3 कानून आए थे ना, इसी तरह से ये चौथा कानून आया है जिसमें बगैर किसी से पूछे, कोई बगैर सुनवाई किए और जमीन नीलाम कर दी जाएगी। किसान के पास उसकी रोजगार का जरिया, अपने बच्चों को पालने पोसने का जरिया एक जमीन होती है। वो जमीन ही नहीं बचेगी तो करेगा क्या? और तकरीबन देश की 90% आबादी खेती के ऊपर आधारित है। अगर खेती नहीं बचेगी तो फिर ये रोजगार, धंधे सब कुछ बर्बाद हो जाएंगे। इस चीज को अभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है साथ के साथ, और मीटिंगें करके एक साथ घोषणा की जाएगी, या तो सरकार हमारी मांगे मान ले, नहीं तो अगले आंदोलन के लिए तैयार हो जाए। और ये चीज बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि ये सरकार मान ही जाए। कैसे करके मान जाए? मानने तो ये कि अभी 5 स्टेटों में चुनाव है, इनको कहीं पर भी बीजेपी का कोई नहीं बन के आएगा। आगे 2024 के चुनाव के मतलब मद्देनजर रखते हैं, या तो सरकार मांगे मान लेगी जल्दी, नहीं तो अब की बार ये आंदोलन तभी समाप्त होगा जब हमारी पूरी मांगे मान ली जाएंगी। जो ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੀਪਕ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜੋ ਕਰਜ਼ਈ किसान ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ है। जो कर्जा लिए हुए किसान है, आप एक चीज देखो, बड़े बड़े उद्योगपति 2000, 20,000, 2200 करोड़ रुपए लेके भाग जाते हैं। अगर किसान सिर्फ 20,000 रुपए भी कर्जा ले लेता ना, तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती है, किसान भाग नहीं सकता। इन चीज विशेष तौर के ऊपर जो कर्जा है ना, कर्जा सब कर्ज माफ बड़े बड़े उद्योगपतियों का हो जाता है। जो 20-20, 30-30,000 करोड़ रुपया लेके भाग जाते हैं, उनका तो कर्ज माफ हो जाता है। जो 20,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया कर्जा लेता है, उसको आखिर में आकर आत्महत्या करनी पड़ती है। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है ये किसान की, जो कर्जे की समस्या है ना। वादे सभी सरकारें करती हैं, सभी नेता वादे करते हैं कि हम किसानों का ये भला करेंगे, वो भला करेंगे। आज तक किसी भी सरकार ने ये नहीं बोला कि किसान का संपूर्ण कर्ज माफ होगा। अगर कोई किसी किसान की, कुछ तो सरकारें मार देती है, कुछ बैंक का कर्ज मार देता है, कुछ ऊपर ये भगवान जी बैठा हुआ, कभी बारिश कभी ओले, फसल बर्बाद हो जाती है, तो किसान अपना कर्ज कहां से चुका पाएगा? उसके बाद मिल में जैसे गन्ना डाल के आते हैं या मंडी में अपनी फसल लेके जाते हैं, वो समय पे पैसा नहीं मिल पाता। ऐसे बहुत से कारण है। जो कर्जे वाला जो नियम है ना, ये सबसे भयानक है, और किसान की आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण है ये कर्जा। क्योंकि कर्जा लेके किसान भाग नहीं सकता, उसकी जमीन को पकड़ के बैंक बैठ जाता है, वो कमाएगा कहां से, करेगा कैसे? ये चीज सबसे बड़ी है। ये पहले भी शामिल थी उसमें आंदोलन में, लेकिन अचानक से स्थगित करना पड़ गया था आंदोलन। अब की बार स्थगित नहीं होगा। सबसे पहले जो मेन समस्या है ना, उनका समाधान किया जाएगा, और कर्जे की समस्या सबसे बड़ी समस्या है किसान की। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਗਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੀਪਕ ਜੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ भी है। मेन और पहला पॉइंट यही है वीर जी, सबसे बड़ा पॉइंट ये कर्जे वाला ही है। अभी इसी के ऊपर सभी की बातचीत आपस में जब होती है कि लोगों को जागरूक करो, जो हम बैंक से कर्जा लेते हैं, ऐसे बैंक बिना बताए हमारी जमीन की कुर्की नहीं कर सकता। कानून तो और भी बहुत है, लेकिन लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं होती, और तब तक बैंक वाले अपना काम कर जाते हैं, कोई भी सरकार अपना काम कर जाती है, और किसान की जमीन नीलाम हो जाती है। जमीन किसान अपनी माँ समझता है जमीन को। अगर जमीन नीलाम होती है तो किसान आत्महत्या कर लेता। जब एक माँ की नीलामी होगी तो बेटा क्या करेगा? वो लानत सहन कर नहीं पाता दुनिया की, इसकी जमीन नीलाम होगी, लोग भी जीने नहीं देते, आखिर में आकर वो आत्महत्या कर लेता है। सबसे बड़ा जो रीजन आत्महत्या का वो है किसानों का कर्जा। कर्जे के ऊपर विशेष तौर से ध्यान दिया जाएगा, और संपूर्ण कर्ज माफी का एक नया कानून बनवाया जाएगा। अगर किसी कारणवश, वो कारण देखे जाएंगे, कुछ कुदरती मार हो जाती है, कभी फसल बारिश से बर्बाद, कभी बाढ़ आ गई, कभी वैसे आंधी तूफान आके फसल को बर्बाद कर देता है, उन कारणों को देखते हुए किसानों के कर्ज माफी का एक नया कानून बनवाया जाएगा। जी दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया गलबात ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद।
ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।